Okay, basically, this quote shows that before anything, literally anything, if you are planning to do anything in your life, the first thing matters is your self-care. Be it physically, mentally, जब तक आप फिजिकली और मेंटली परफेक्ट नहीं होंगे, ना आप अपना ध्यान रख सकते हैं, ना आप अपनों का ध्यान रख सकते हैं, ना आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं. अचीव कर भी लेंगे तो उसे कभी एंजॉय नहीं कर सकते. So the first thing which matters the most is self-prioritization. A self-importance is good, arrogance not good. I am talking about giving yourself the importance. Self-loving is very important. Love yourself before you love others. Right? Agree? Yes, sir. Agree? Sure? Okay. So now let's get on to some interaction session. Most of you are from the engineering department, or some are from the BCA and BJMC as well. All are from the engineering department only? Okay. So can anybody of you tell me, like you must be in your like second or third year of BTech, right? So आप में से मुझे कोई बता सकता है कि अब आपके future plans क्या हैं? Like you want to study, you want to go for job, or you want to drop your years and go for GATE exam? Like what is it? Come on, speak up. It's an interaction session. Yeah. Studying abroad for PG. Studying abroad for PG, like mainly for MTech, right? MBA. So MBA. MBA. Okay. So which countries are you aspiring for? I am aspiring for Australia. Australia. Okay, that's good. Anybody else? Abhay? MBA from India only. Okay, you are not Deshdrohi, right? Okay, just like us. Okay. Yeah, back. Girls are not speaking anything? Yeah. Can you be a little bit louder, please? Mm-hmm. Okay, you want to be a teacher? Yeah, like if everything goes well, Mm-hmm. there are a lot of opportunities to well. So I want to go to the same exam. Okay, and you can join us anytime if you want. We will give you a good salary for sure. Okay? Okay. Deepak sir, we got one aspirant future के लिए. Okay? Yeah. In the back, can we have a bit of a silence, please? Yeah. गाइस प्लीज बी एनर्जेटिक. गोलगप्पे बेचने नहीं है, पैसे देकर खाने भी हैं. ठीक है, बी एनर्जेटिक. Yeah. Can you answer? Yeah. Masters in MTech, in MBA, what? MTech. So, okay. As you are not in the position of speaking today, maybe, ma'am, you should have fed them something before the seminar. कोई बात नहीं, चलो. Okay, raise your hands who want to do MTech in the future. Not mostly. Okay. What about MBA? Okay. Pretty much. And how much of you are aspiring to do, like dropping your years to prepare for GATE exam? Do you have any idea about it? About the GATE exam? Yeah, it's like a halwa on the puri, right? Yeah. GATE exam, anyone? Or thinking in preparing it? GATE exam, right? Okay. In the back, people are scrolling there. You're not interested in the session? Just came here to study? That's fine. I'm not forcing you. Okay? Okay. So next slide, sir, please. So basically, the statistical data show that basically USA, Canada, Singapore and Australia are the most wanted countries by the students if they want to go abroad and do studies. These are, and Canada has been on the top notch. Okay, sir, can you switch on to the next slide, please? If you see the data from 2021 till 24, as you can see, this orange bar shows the bar of Canada. Okay, so you see Canada has been the most wanted country
okay, in terms of students going to study abroad, and you can see the bar is rising. This is because Canada has been providing a lot of opportunities to the students, and specifically to India, and they are, you know, in the situation that they are providing various opportunities and also various schemes for the students to attract. What they are doing here, जितनी मेहनत आप यहाँ पर कर रहे हैं, जितना एफर्ट आप यहाँ पर कर रहे हैं, उसके आधे एफर्ट में वहाँ पर आपको जॉब्स मिल रही हैं, आपको वहाँ पे डबल पे स्केल मिल रहा है, प्लस जो अदर फैसिलिटीज़ है, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग ऑन अ वर्क परमिट, वो काफ़ी ज़्यादा हैं. यू नो, Canada has been playing this game for the past 4 years, and this is the statistics that have been approved. Okay, आप ये चीज़ देख सकते हैं. Next slide please. Okay. So, as most of you are from the BTech department, sir, you don't need to stop at the BC and the BJMC slide. Okay? Yeah. So, as I was asking you that you have these much career aspects after doing BTech. Like most of you said that you will be doing MBA. So, do you have the idea in which fields you can go for MBA? You were saying me that you want to do MBA, right? You, okay. In finance, okay. And what are the fields like you are aspiring to do MBA? I'm sorry? Second option, product designing. Product designing, okay, good option. Yeah. Yeah, so can you please just say yes or something so I can, yeah. When there's sales, there's marketing. Mm-hmm. But marketing isn't that into now. Like, Mm-hmm. it's not into now. So, there's sales. Finance is one of the top options. Mm-hmm. Then there's management as well. Okay. HR. Okay, that's a good option. Yeah, HR is also not doing well. Mm-hmm. Okay. Anybody else? Human resource and consultancy, very good option. Yeah. And for the MTech, who were aspiring for the MTech, have you decided any specific fields? You have some knowledge about it? Yeah. Artificial intelligence, very good. So you see, MBA and MTech have always been the top priorities of the BTech graduates. Okay. So you see in what I tell you the scenario of the abroad countries, what they prefer. Okay. आप ये देखिए BTech करके MBA 90% students are doing that. Okay. But in the outside countries, okay, what they do, what they have the thinking in their mind, कि हमें एक बंदा मिल गया टेक्नोलॉजी वाला, एक मिल गया बिजनेस वाला, तो हमें दो को क्यों हायर करना है? ठीक है, हम एक को ही हायर करेंगे, उसी पर ही वर्क करेंगे, उसे दोनों डिपार्टमेंट्स में डालेंगे एंड हमारा मैन पावर कम होगा एंड हमारी जो मतलब प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी. ठीक है, तो आप ये चीज़ देखिए कि बीटेक आफ्टर एमबीए का जो एक ऑप्शन जो भी आप में से सोच रहा है, इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. एमटेक ऑल्सो हैज़ बीन अ गुड चॉइस, ऐसा नहीं है. एंड प्लस एमबीए, आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो चॉइसेस हैं आज की डेट में, एमबीए सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एचआर से रिलेटेड नहीं रह गया है. यू कैन डू एमबीए इन वेरियस फील्ड्स, लाइक someone was mentioning me artificial intelligence, someone was mentioning me in the resource department. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस चूज कर सकते हैं. ओके, इन आउटसाइड इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, यू हैव ऑलवेज द ऑप्शन कि आपको डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर आप बाहर जाने की सोचते हैं, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर दोज पीपल. इंडिया में द पीपल हैव दैट मेंटालिटी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, लाइक द पर्सन हु इज़ डूइंग एमटेक एंड द पर्सन हु इज़ डूइंग लाइक अ सर्टिफिकेशन कोर्स. सर्टिफिकेशन कोर्स की वैल्यूज़ यहाँ पर कम है, लाइक इन डिप्लोमास, पीजीडीएम, यू मस्ट हैव हर्ड, राइट. सो आप ये देखिए कि वहाँ पर सर्टिफिकेशंस जो है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ बीन वन ऑफ द फेवरेट टिल नाउ. ओके, सो आप ये देखिए कि अगर आप बीटेक के बाद इफ़ यू फील लाइक ओके नो आई डोंट वांट टू स्टडी एनी मोर, नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर माय ऑप्शंस एंड माय स्किल्स. ओके, सो यहाँ पर आप ऑप्शन ले सकते हैं सर्टिफिकेशंस का. ठीक है, द सर्टिफिकेशंस कुड वेरी फ्रॉम 6 months to 1 year to 9 months, 10 months, depending upon the course. And after that, you can enhance your skills, and these certifications get equal value as that of MTech. ऐसा नहीं है कि MTech वाले इंसान को वैल्यू ज़्यादा मिलेगी और सर्टिफिकेशन वाले को कम मिलेगी. ओके, एनी अदर डाउट टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? ओके,
and these are basically the co-programs, basically the cooperative programs. This we will be talking in the later slides. Okay. Okay, so this is one question for you. Okay, you are all BTech aspiring graduates. Okay, so tell me, as you know, the plural of boy is boys, toy is toys, girl is girls, but of baby it is BABIES. So can you tell me why it is not YS? Why do we put IES? No Googles please. This is a basic 4th standard question. आप TOYS लिखते हैं तो बेबी में BABYS क्यों नहीं लिखते हैं, IES क्यों लिखते हैं? ओके, I'm sorry. No, I'm sorry. No. Yeah, Vidyut. No. This side, ma'am, please. Yeah. Why always sounds as a vowel to make it making the difference between the two sides? No. Have you googled the answer? You are looking down, right? Sorry, not accepted. Yeah. No cheating with the teacher, please. You have also googled the answer. Okay, tell me. Boy is O is a vowel. Mhm. Before Y, so the B is Y S. And in babies, before Y there is B which is not a vowel, therefore we use I. So what is this B? Can you tell me? B is not a vowel, it's a consonant. It's a consonant. Very good. Can I know your name? Shiv. Shiv. Okay. Very good, Shiv. Very good. Very good. So you see, we have a vowel in the toy before Y. That is A. Ruchi, ma'am. Sir, please can you? Yeah. आ जाओ please at the Shiv, back, please Shiv, come here. Yeah. So you see, if there is a vowel before Y, A, E, I, O, U, then we will put a S in the plural form. But if there is a consonant before Y, as in babies, you can see Y से पहले B है, and B is a consonant, not a vowel. Then we will use IES. Okay? And it's not a thing कि वो thing है, वो इंसान है इसीलिए, ठीक है? सबको equal importance मिलती है. Okay? Okay, Shiv, yeah, just a small gift for your intelligence. Keep up like this, yeah? Next करो. वैसे सीरियसली बताना ये आंसर किस किस को पता था? Okay. Ma'am, shall we put on the general English classes also in the BTech department? If you want, we can do that. Okay. So let's take a fair comparison. Okay. What are basically the aspects? Basically, see. So can you tell me one aspect कि अगर आप इंडिया में स्टडी करने का सोचें या बाहर सोचें तो आपका एक जनरल जो एक आइडिया होता है क्या रहेगा? जैसे why do we study? ठीक है, अगर हम किसी से जनरली पूछते हैं आप क्यों पढ़ रहे हैं, why are you doing BTech, तो क्या आंसर है आपका? I'm sorry? To gain knowledge and earn money. Okay. Anybody else? Yeah? Earning in dollars, spending in rupees. Earning, that is for the study abroad thing, yeah? Basically, I'm asking, why are you studying? Yes, sir, at the back, in the green shirt. Yeah, can you answer? Why are you studying? I'm not, you're not audible to. Knowledge और money के लिए, वो आंसर हो गया. और Gaining respect as well. gaining respect as well. Okay. Anything else with you? Sorry? घर वालों ने बोला है. घर वाले बेटा बीटेक के बाद शादी करने को भी बोलेंगे, कर लोगे? बीटेक के बाद या तो जॉब करो नहीं तो शादी करो और दुकान पे लगो, ठीक है? करोगे? देखे ना इतने घर वालों की सुनने वाले. Yeah. Guys, please. Am I speaking like two in a boring situation? I don't think so. If it is like that, please tell me. I can make it a little more interesting. Yeah. At the back, why are you studying? Yeah.
ROI. आई एम सॉरी, ROI. ROI, Return on investment. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है टाइम एंड एफर्ट के अलावा? पैसे. पैसे आप खुद लगा रहे हो? मैं तो ROI. पहले मेरे घर वाले. ओके, तो बेटा वो तो गोलगप्पे की रेडी लगा के भी मिल जाता, उससे ज़्यादा मिलता है बल्कि। हैव यू सीन द अर्निंग्स ऑफ अ गोलगप्पा वाला? दे आर अर्निंग मोर देन द इंजीनियर्स, आई एम सो सॉरी टू से दैट। या ओके, सो ये जो ROI का पॉइंट है ना, हमें मत समझाओ, ठीक है? या यस, एनीबडी एल्स? या इन द बैक, इन द येलो टी शर्ट, राइट? या वुड यू लाइक टू से समथिंग? सेम क्वेश्चन? ओके, सो बेसिकली आप ये देखिए कि आप पढ़ाई किस लिए करते हैं? पैसा कमाएंगे, नॉलेज मिलेगी, ठीक है? लाइफ में बेसिकली कुछ बनने के लिए, कुछ स्टैंड करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली आवर पेरेंट्स, प्लीज। या ठीक है, तो आप ये चीज़ देखिए, तो कहीं ना कहीं अब आपका एस्पेक्ट यही आता है कि अब हमें आगे क्या करना है। अगर हमें इंडिया में करना है, आप M.Tech के लिए सोच रहे हैं, आप MBA के लिए सोच रहे हैं, या आप आगे शायद जॉब भी करें, ठीक है? तो आप ये चीज़ देखिए कि किस बेसिस पर आप ये डिसीजन लेंगे, बताइए। Maybe और पढ़ाई करनी है. That depends on my instinct. मतलब say me what I am willing to do. योर इंस्टिंक्ट। हाँ, मतलब what my interest is. हो सकता है मैं 4 साल और पढ़ के इतना बोल जाऊँ, मेरा आगे पढ़ने का मन ना. Yeah, fair enough, fair enough. You see, most of the people, as I was telling you earlier, those who are doing this certification courses, उसका 50% रीज़न यही है कि वो पढ़ कर परेशान हो जाते हैं। एंड नाउ दे वांट टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, नॉट देयर थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है? आपके पास एक डिग्री आ गई, आप सिक्योर हो गए, नाउ दे वांट कि अब हमारे स्किल्स एनहांस हो और हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में जाएं। फेयर इनफ। या एनी अदर रीज़न? या कैन यू टेल मी? या you are not listening. Okay, so I was asking कि अब आप आगे चलकर इंडिया में पढ़ाई करेंगे, बाहर पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, या जो भी करेंगे, ठीक है? किस बेसिस पे ये डिसीजन लेंगे? कुछ तो हम सोच समझ कर, आप देखिए, अपना देश छोड़कर जाना इज़ अ वेरी बिग डिसीजन। अपने रूट्स छोड़ के जाना, अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाना बहुत बड़ा डिसीजन है। सब कुछ वहाँ पर जाकर आपको बिल्कुल एक नया कल्चर मिलता है, यू नो, आपका बिल्कुल, कहते हैं ना, दुनिया बदल जाती है जिसे हम कहते हैं। जो आप यहाँ पर अब बाहर निकलते हैं, 2 कदम पे आपका धोबी बैठा हुआ है, 3 कदम पर आपका नाई बैठा हुआ है, वहाँ पर नहीं होता है ऐसा। वहाँ पर आपको एक हेयर कट कराने के लिए बहुत टाइम सोचना पड़ता है, ठीक है? सो इट्स नॉट एन ईजी केक वॉक। तो आप अगर इतना बड़ा डिसीजन लेंगे तो किस बेसिस पर लेंगे? आई एम सॉरी, अपॉर्चुनिटीज वर्सेज इन्वेस्टमेंट्स। या अगर मैं जो इंडिया में जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं सेटिस्फाई हूँ तो कैन यू प्लीज स्टैंड अप एंड से आई एम नॉट। या जो मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, तो मुझे लगेगा नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ, शायद मैं इंडिया से बाहर जाके और अच्छा जॉब मिल सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है। बट ड्यू टू सम रीजन यू मस्ट बी थिंकिंग दैट ना, तो आई एम आस्किंग दोज रीजंस ओनली। हटा दो। Satisfaction. Okay. Anybody else in the back? Yeah. Opportunities. Yeah. Okay. Yes. Please, can we have some silence, please, at the back? You can chatter later on, please. Yeah. Career growth. Okay. Opportunities, career growth. Anything else? Yeah. ये आपका फोन है? Knowing oneself more. Can you please elaborate on this? किसी का फोन आ रहा था। If I'm saying I want to do B.Tech and after that I want to pursue MBA, Mhm. so I'm going in 2 different categories. So I choose एक फोन यहाँ भी रखा था, किसी का मैंने दे दिया उसको, उनको दिया था, उनको दिया था। in that part. So it's about my interests. I'm on myself. ओके ओके, एक्सप्लोरिंग, वेरी गुड। एक्सप्लोरिंग इज ऑलवेज गुड कि आपने, जैसे यू नो, सम पीपल्स आर डूइंग दिस कि बीटेक के बाद वो अपने स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है? दैट इज अबाउट एक्सप्लोरिंग ओनली। ओके, वी वर ऑल्सो इन दिस टीचिंग बिजनेस फॉर द पास्ट 10 years, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर ओन स्टार्टअप। दिस इज आवर स्टार्टअप ओनली। सो सबका है, दैट इज, या, एक्सप्लोरेशन इज अ वेरी गुड पॉइंट। एनीथिंग एल्स? आई एम सॉरी, इंडिपेंडेंट। ओके, मतलब वहाँ जाके अपने आप कपड़े धोने हैं, अपने आप खाना बनाना है। बेटा उसे टोका टाकी से बचना कहते हैं, ठीक है? जो आप मुझे इंडिपेंडेंस बता रहे हो, ठीक है? दैट इज व्हाट वी कॉल कि जो ये पेरेंट्स हर बात पे नैप करते रहते हैं ना कि बेटा उठ जाओ, खा लो, नहा लो, ये चीज़ों से बचना है। ओके,
एंड ऑब्वियसली या द लाइफस्टाइल, ओके, समवेयर डाउन द लाइन वी फील कि वहाँ का लाइफस्टाइल भी हमें एक्सप्लोर करना है, राइट? सो बेसिकली यू सी व्हेनेवर समवन इज आस्किंग और समवन इज थिंकिंग कि मेरे क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसके वजह से आई शुड स्टडी इन इंडिया, ठीक है? अब आप देखिए, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग एमटेक, you must be considering colleges like IITs, okay, NIITs, BITS Pilani. These are what the top-notch colleges for MTech, okay, and you will be going there for sure, okay. आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए ट्राई करेंगे कि हमें ऑब्वियसली किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये सोच प्रिवेल करती है कि आप जब किसी अच्छे कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी प्लेसमेंट्स है और आगे ऑब्वियसली एक कहीं ना कहीं एक स्टेटस वाली चीज़ भी हो जाती है, ठीक है, कि आप कहीं आपने आपने बिट्स पिलानी से पढ़ाई की है, ओके, आपने IIT से पढ़ाई की है, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? सो यहाँ पर देन करियर और प्रोस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एज यू नो द पॉपुलेशन इज मोर एंड द अपॉर्चुनिटीज आर लेस एज कम्पेयर, ठीक है? यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. If like you are doing BTech now you want to shift कि अब मुझे MBA करना है in the computer field which I was telling you, cloud computing, ठीक है? It's a different field, but you want to explore your options, तो शायद आपको इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी ना मिले, ठीक है? फिर आप देखिए कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात क्या है, आप जैसे आप सोचें कि मैं आगे चल के अपनी PG स्टडीज़ करूँ और साथ में मैं जॉब भी करूँ, that won't be possible for you, बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपका एमटेक का करिकुलम है या जो आपका एक कॉलेज का मतलब सिनेरियो है, वो आपको अगर आप करना चाहेंगे वो आप अपने हिसाब से करेंगे, यू विल बी शिफ्टिंग एंड यू विल बी रीसाइजिंग योर स्केड्यूल अकॉर्डिंगली. तो आप क्या करेंगे, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे, द कॉलेज वोंट बी हेल्पिंग यू फॉर दैट, ओके. लेकिन और फिर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इंटर्नशिप्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता. इफ़ आई टॉक अबाउट द PG लेवल स्टडीज़, ठीक है, इंटर्नशिप्स के लिए आप आगे जा सकते हैं. सेकेंडली यहाँ पर रिकमेंडेशंस का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है. आप ये देखिए कि अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप करने की सोचते भी हैं कि चलिए आपका 1 साल PG हो गया, उसके बाद आई शुड स्टार्ट गेनिंग सम एक्सपीरियंस कि चलो मैं किसी कंपनी में लग जाता हूँ, तो ठीक है, ओके पापा ज़रा उनको फ़ोन करना, मेरी ज़रा जॉब करवा देना, मुझे 2 महीने के लिए वहाँ प्लेस करवा दो जो मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, दिस द थिंग. या शर्मा अंकल को पटाकर रखना प्लीज़, 6 महीने के बाद मेरी जॉब लगवा देंगे. इट इज़ लाइक दैट ओनली, राइट? या एट द बैक, आर यू विद अस? जस्ट प्लीज टेल मी यू आर इन द in the seminar or not, you are studying on your own. No for what? सेमिनार में है, ओके, ठीक है. सो these are the things, like आपको इंटर्नशिप्स के लिए इतना ज़्यादा जो कॉलेज है या आपके खुद के मतलब घर वाले, वो खुद आपको यही कहेंगे कि पहले आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कर लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, उसके बाद जॉब का सोचो ना. आज की डेट में आप देखिए, आप बाहर के लोगों को देखते हैं, 15-16 साल के बच्चे कैफेज में काम कर रहे होते हैं, ठीक है. दे आर ऑल्सो स्वीपिंग द फ्लोर्स, ठीक है. वो लोग आपने देखा होगा कि जैसे अगर इफ़ यू हैव बीन टू अब्रॉड, आपने देखा होगा एडवेंचर पार्क्स में वो लोग राइड ऑपरेटर्स का काम कर रहे होते हैं. So is it very shameful? No. They are earning. Like I have one niece of mine who is in USA right now. She was born and brought up over there. She is at this stage. She is 18 years and वो बिल्कुल फाइनेंस फ्री अपने पेरेंट्स से. वो सब कुछ अपना पूरा खर्चा वो खुद निकाल रही है, क्योंकि उसने आई थिंक 12 या 13 की एज से उसने अपने काम शुरू कर दिया था. समटाइम्स एज ए राइड ऑपरेटर इन अ कैफे, उसने सब कुछ करना शुरू कर दिया था. और आज 18 साल की उम्र में वो अपने कॉलेज की, अपने फन एक्टिविटीज़ की, अपने स्किल्स की वो सारी फीस वो खुद भर रही है. क्यों? क्योंकि एक तो उसे अर्निंग मिली, उसे क्या कहते हैं एक्सपोजर मिला इस चीज़ का कि येस आई कैन गो एंड वर्क आउटसाइड, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉलेज एंड पेरेंट्स. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. एंड लास्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम्स. लाइक एज आई टोल्ड यू कि इंडिया में जो आपकी डाइवर्सिटी है प्रोग्राम्स की, वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है. जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ 4-5 फील्ड्स ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है. आप भी अगर कल को अगर अपना करियर स्विच करने की भी सोचेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल बीटेक अभी आप शायद मैकेनिकल में कर रहे हैं, कल आपको लगे कि मुझे शायद कंप्यूटर्स फील्ड को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, तो आप इतनी जल्दी उसे स्विच नहीं कर पाएंगे. इट विल नॉट बी ईजी फॉर यू.
कहीं ना कहीं शायद आप मार्क्स में रह जाएं, या शायद आपको इस वजह से ना कंसिडर किया जाए क्योंकि आप इस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। सो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So now as we compare it with studying abroad, basically in US and yeah, so you can see यहाँ पर बेसिकली बाहर अब्रॉड कंट्रीज में इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल एनहांसमेंट, इस चीज़ पे हमेशा ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। दे विल आस्क यू कि आप जब भी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको और इसके बारे में जानकारी देंगे कि आप अगर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, दे विल फोर्स यू टू गो आउटसाइड एंड गेट प्रैक्टिकल नॉलेज. दे विल फोर्स यू टू गो आउटसाइड एंड डेवलप योर स्किल्स. और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एंड दे विल सपोर्ट यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एमटेक कर रहे हैं इन द क्लाउड कंप्यूटिंग फील्ड, ओके, दे विल आस्क यू कि गो एंड डू द जॉब्स, दे विल रिकमेंड यू. वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप ये देखिए कि बाहर क्या होता है, आउट ऑफ द 12 मंथ्स थिंग, ठीक है, 4 मंथ्स वो पूरे के पूरे डेडिकेट होते हैं आपकी जॉब पर. कॉलेज आपको उसकी पूरी अटेंडेंस देता है, कॉलेज आपको उसमें पूरा हेल्प करता है, ठीक है. गॉट इट? आई थिंक मैम गॉट ऑफेंडेड. या ओके, गॉट इट? स्लीपिंग. तो आप ये चीज़ देखिए कि कहीं ना कहीं इंटर्नशिप प्रोग्राम्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है बाहर के कंट्रीज़ में, ठीक है. आप ये चीज़ देखिए कि वहाँ पर इतनी इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप किया जाता है दैट 100% ऑफ द बैच इज वर्किंग. ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो लाइक द 4-5 ऑफ यू विल बी गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. नो, इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ बैच, ऑल 50 विल बी वर्किंग. And that is with the support of college. College will be placing you, ठीक है. कॉलेज आपको सपोर्ट करेगा, कॉलेज आपको गाइड करेगा कि नहीं आपको बाहर जाना है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है. एंड फॉर दैट वो आपके ऊपर इस चीज़ का बर्डन नहीं डालेंगे कि नहीं आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको हमारे साथ जॉब भी करना है. नो, सॉरी, आपको जॉब भी करना है और हमारे साथ पढ़ाई भी करनी है. नो, व्हाट दे विल बी डूइंग, अब आप पढ़ाई से फ्री हैं, जाइए, जब वहाँ से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी वो आपके कोर्स में इंक्लूड होगी. दिस इज द बेसिक थिंग ऑन व्हाट दे आर वर्किंग. स्किल डेवलपमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ थ्योरेटिकल पर आपकी जो नॉलेज है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती. आपने एक यूट्यूब चैनल देखा, ठीक है, आजकल जैसे बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, लाइक पीछे देयर वर अ लॉट ऑफ रेसिपीज ऑफ मैगी गोइंग ऑन, ठीक है. आपने देखा कि फैंटा के साथ मैगी बन रही है, चाय के साथ मैगी बन रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है. आपने देख लिया, हो सकता है कि शायद आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी लगाओ, या ये पता नहीं कैसे होगी. आप किसी दोस्त के घर पर गए, उसने आपको वो बनाकर खिलाया, आपने कहा यार ये तो बहुत टेस्टी है. देखने में तो वो आपको यकी लगा ना, बट जब आपने उसको एक्चुअली खाकर देखा तो वो आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा. तो आपने खुद से तो प्रैक्टिकली उसे बनाकर नहीं देखा. नॉलेज तो आपको है कि ठीक है फैंटा डालेंगे, मैगी उबालेंगे, खा लेंगे, लेकिन कर किसी ने नहीं देखा. दैट इज द डिफरेंस. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज इज ऑलवेज, आप ये चीज़ देखिए कि बुक्स में जब आप रहते हैं और जो चीज़ आप एक प्रैक्टिकल वे में करते हैं वो ज़्यादा आपके दिमाग में जाती है हमेशा. दैट इज़ अ थिंग, राइट. आप अगर अपनी मम्मा से सब्जी बनाने का पूरा वो लिख कर लेकर जाएंगे और जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इतना ईजी नहीं है जितना वो पेपर पर दिख रहा है, राइट. हाउ मेनी ऑफ यू नो कुकिंग? ओके, नाइस. ओनली मैगी, फैंटा मैगी. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, so now Deepak sir, will take up the program. Yeah, so as well as this is basically the program which I was talking about. Okay, silence please. This is basically the COPE program. अगर आप कभी भी किसी बाहर की यूनिवर्सिटी का ब्रोशर उठाकर देखेंगे तो आपको स्पेसिफिकली COPE प्रोग्राम एक सेक्शन वहाँ पर दिखाई देगा. COPE program is basically cooperative education program. Okay, so you see यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बताया, little bit of silence please. Yeah, basically जो मैंने आपको बताया कि बाहर के कॉलेजेस स्किल एनहांसमेंट प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज पर बहुत बहुत ज़्यादा जोर देते हैं. आप यहाँ से एडमिशन लेकर बाहर जाते हैं, ठीक है, सो यहीं से ही आप COPE प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं. दे आस्क यू कि क्या आप COPE प्रोग्राम करना चाहेंगे,
So you will say yes, okay? And on certain things they will evaluate you कि आपका IELTS का score क्या है. IELTS is basically the English proficiency test that we will be talking about later, okay? And on those basis आपको आगे admission मिलता है. And it is not any like a difficult thing. 99% of students get co-program. And co-program is basically, if you can see the pointers, आपको मिलता है, I have been like मैंने आपको already एक brief में समझा दिया है, but still you can see you get practical experience in this, which is a big thing. आप अपने बुक में एक कंडक्टर बनाना सीखते हैं और जब आप उसे प्रैक्टिकली करते हैं एक बार में आपको समझ में नहीं आता है, राइट? दिस इज द थिंग, राइट? सो आप ये चीज़ देखिए कि कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया जाता है, ठीक है? नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, व्हेन यू विल बी गोइंग टू डिफरेंट कंपनीज, ओके? आप वहाँ जाएंगे, लोगों से सोशलाइज करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज से आप मिलेंगे वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि लाइफ में हो क्या रहा है. आप जो एक रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं और लोग बाहर क्या क्या टेक्नोलॉजीज निकाल रहे हैं. आपने देखा है IITs में दिल्ली, आपने देखा होगा साल में एक बार कोई ना कोई एक ऐसा इन्वेंशन ज़रूर हो जाता है जो कि लाइक आउट ऑफ द बॉक्स होता है. देखा है कभी आपने? लाइक आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल कि उन्होंने अब कोई लाइक एक मटका फ्रीज़र बनाया है, लाइक दैट डजेंट रिक्वायर अ पावर. उसमें पानी एकदम ठंडा रहेगा एंड चिल्ड रहेगा, लाइक आइस भी उन्होंने काफ़ी टाइम तक रखी, वो मेल्ट नहीं हुई. दिस वॉज समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था उसके बारे में, ठीक है? सो व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो कामयाब हो गया. तो आप ये देखिए कि आप कभी कोई आपको एक्सपेरिमेंट करने का चांस ही नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? आपको आपका एग्जामिनर बोले कि नहीं बैठ के बुक पढ़िए, एग्जाम दीजिए, 90% लाइए, फिर बात करिए. नहीं, यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि पहले हमें कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाइए. थ्योरेटिकल बुक्स रटना तो कोई भी कर सकता है, बुक्स के लिए तो आपके पास डिवाइसेज हैं. कितने सारे डिवाइसेज हैं आज की डेट में आपके पास लैपटॉप है, आपके पास AI है. आजकल हर आई थिंक 90% ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग AIs, राइट? फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन ऑल्सो. सो आप ये चीज़ देखिए कि कहीं ना कहीं जो ये नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ है, जब आप बाहर जाते हैं 10 लोगों से मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी जो नॉलेज है और जो एक प्रैक्टिकल चीज़ है उसको काफ़ी एनहांस करता है. डू यू अग्री विद दिस? या ओके. एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी, एज आई टोल्ड यू, आप बाहर जाएंगे, एक लेवल पे काम करेंगे, बाहर जाकर आपको और नॉलेज मिलेगी, तो आप ये सोचेंगे कि चलो शायद मैं कंप्यूटर्स कर रहा हूँ, अब शायद मुझे AI पे जाना चाहिए, ठीक है? आई शुड ऑल्सो ट्राई, एंड ट्रायल एंड एरर इज द बेसिक ह्यूमन राइट. करिए, फेल हुई है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन करिए तो सही. करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, हर कोई नहीं करता है, ठीक है? या अग्री? लिसनिंग? श्योर? क्या कहा मैंने अभी? ट्रायल एंड एरर. या ओके. सो आप ये चीज देखिए, अगेन इनकम जनरेशन. यहाँ पर को प्रोग्राम में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आपका जो जॉब है दैट इज फुल्ली पेड जॉब. आपको पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी. दैट टू द मिनिमम वेजेस आर $18 per hour. Can you do the maths for me? 18 into 65? Come on, BTech students, come on. 18 into 65? 1170. Yeah? Approximately you can say 1200. Yeah? 1200 per hour you are earning. Per hour. And that is your fixed amount. ये तो minimum है. जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे और आप अपनी स्किल्स उनको दिखाते जाएंगे, दैट इवन टर्न्स इनटू $65 पर आवर. और ये ऐसा नहीं है कि जब आप उसको अपनी डिग्री को कंप्लीट करके निकलेंगे, नहीं, विद इन दैट टाइम फ्रेम ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ 65 into 65, कैन एनीबडी डू द मल्टीप्लिकेशन फॉर मी? सॉरी, 4225. So every hour you are working for approx 4300. या तो इनटू, अगर मैं आपका वर्क आज 6 आवर कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा? 4300 into 6. कम ऑन. मुझे लगा था बीटेक स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे जवाब देते हैं. मैथ सबका वीक है क्या? 25350. 25,000 एक दिन का आप कमा रहे हैं वहां पर. दैट टू विद डूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन.
टेम्पटिंग, इंटरेस्टिंग, मज़ा आया सुन के? या ओके सर। एंड ऑब्वियसली आप जब बाहर जॉब करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी भी स्किल्स एनहांस करते हैं और सबसे ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड दैट इज़ वन वेरी थिंग इम्पॉर्टेंट थिंग टू अचीव दीज डेज। ठीक है? या so if particularly if I talk about Canada, as I was telling you about Canada earlier, that it is one of the most desirable countries nowadays if the students are taking up for the study abroad thing. Canada, as I have already shared the data with you. Yeah, please silence please. Yeah, okay, it is the second largest country. इसका जो population है वो है जितना आपका दिल्ली का population है। ठीक है? Can you see the GDP growth? It's 2.2 trillion USD. This is the GDP rate. आप ये देखिए कि यहाँ पर जो सेमेस्टर पैटर्न रहता है वो रहता है 4 मंथ्स का और इंडिया में रहता है 6 मंथ्स का। ठीक है? एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि को प्रोग्राम में 8 मंथ्स वो आपसे स्टडी करवाते हैं। ठीक है? 8 मंथ्स जब आप स्टडी करते हैं उसके साथ आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं। उस टाइम पे कॉलेज will only be sending you for the part time job, okay, and then they will be and that time also आप ये मत सोचिए कि पार्ट टाइम जॉब है तो आपको पे कम मिलेगी। that time also आपका मिनिमम वेज होगा $18। एंड उसके बाद जब आप लास्ट सेमेस्टर में आते हैं दैट इज 4 मंथ्स, इस 4 मंथ्स में आप पूरी तरीके से लाइक फुली फंक्शनली आप जॉब करते हैं। ये इनका पैटर्न है और ये नहीं है कि लाइक 50 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से सिर्फ 20 को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं, 50 ऑफ देम विल बी डूइंग दिस। सो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ देखिए कि ये जब तक आपका खत्म होगा एंड स्टार्टिंग में आपको $18 to $25 मिलता है। ठीक है? अगर आपकी स्किल्स एनहांस होके अगर आप $65 यानी कि अप्रॉक्स 25,000 पर डे अगर आप कमा रहे हैं, जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, या प्लीज एक्सक्यूज मी, फोकस, थैंक यू। या सो जब आप पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो जितना खर्चा आपके मम्मी पापा ने आपको वहाँ भेजने के लिए दिया है उनसे ज़्यादा तो आप उनको वापस कर देंगे कि ये लो मम्मी पापा रखो। दैट इज ROI। वेयर इज द ROI पर्सन? या ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल ROI कि पेरेंट्स से लिया और जब आप उन्हें वापस करते हैं ना, दैट इज ROI। द हैप्पीनेस यू सी इन देयर आईज इज द ROI। द प्राउड यू सी, that is the ROI they expect from you. Yeah? Okay, next slide please. And this is one fact that you all need to know. जैसे ही इसमें मैं 2 एस्पेक्ट्स बताना चाहूँगी। जैसे ही आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर कर निकलते हैं, अपने आप कनाडा गवर्नमेंट आपको वहाँ पर 3 साल का वर्क परमिट देती है। दैट डज नॉट डिपेंड कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपको कौन सी कंपनी में आपने जॉब किया है, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? इस बात से कि आपने 2 साल अपनी वहाँ पर डिग्री पूरी करी, कनाडा गवर्नमेंट या एनी अदर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू 3 ईयर वर्क परमिट। और अगर आप वहाँ जाकर 1 साल का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं तब आपको ये वर्क परमिट 2 साल के लिए मिलता है। ठीक है? एंड when you are staying in a country on a work permit for minimum of 2 years, you are eligible, mind you, you are eligible to get yourself converted into PR. PR is the permanent residency. जब आप किसी भी कंट्री में 2 साल के लिए वर्क परमिट पर काम करते हैं, उसके बाद कनाडा गवर्नमेंट अपने आप आपको ये अपॉर्चुनिटी देगी कि आप वहाँ पर PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आप ये चीज़ देखिए कि आपके लिए कितना, एक कहते हैं ना, एक फ्लो चार्ट रेडी है। ठीक है? अब इसके बाद देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू टेल यू। आपको अब ये जानने में इंटरेस्ट होगा, अगेन एज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, कि मैं अपना देश छोड़कर क्यों जाऊँ। मेरे यहाँ पर मम्मी पापा हैं, उठने से पहले मुझे चाय मिल जाती है, मेरे कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं, मेरा खाना रेडी मिल जाता है, एंड एज आई वाज टेलिंग यू कि हर गली के कॉर्नर पर क्या है क्या नहीं है। ठीक है? मैं क्यों छोड़कर जाऊँ अपना देश जब वहाँ जाके मुझे अपने कपड़े खुद धोने हैं? या यू गॉट इरिटेटेड बाय दिस? या आई एम टॉकिंग टू यू? या
कपड़े मत हो यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट गेट इरिटेटेड बाय दिस, या ओके। सो यू सी, आप ये चीज़ देखिए कि वहाँ पर आपको क्या ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अपने देश की सिटीजनशिप छोड़कर दूसरे देश में क्यों जाकर सिटीजन बनेंगे। सो वी वॉन्ट टू शो यू वन वीडियो ओवर हियर, ठीक है। ये वीडियो मैंने खुद शूट किया है, दिस इज फॉर माई इंस्टाग्राम चैनल, ओके, एंड दिस हैज़ रेटेड अप्रॉक्स 1.2 million व्यूज ऑन इंस्टाग्राम। सो वी वॉन्ट टू शेयर दिस वीडियो विद यू, ओके। सर कैन यू प्ले दिस? This basically shows the benefits of getting PR in Canada. Is it connected with the net? I don't think so. Where is Vidyut? Abhay, can you see? No idea. Is the laptop connected to the net? Not working. नहीं, I think. Okay, leave it, no problem. I can tell you verbally, okay? We'll send it to Vidyut, he will circulate it, okay? So you see, आप जब कनाडा में, अगर इफ यू टॉक अबाउट कनाडा, लेकिन ये जो एस्पेक्ट है ये हर कंट्री में है, वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट कनाडा बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कंट्रीज अमंग स्टूडेंट्स दीस डेज, ओके। सो आप ये चीज़ देखिए कि आप कहीं ना कहीं जब आप कनाडा के PR में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, लाइफ लॉन्ग हेल्थ केयर सर्विसेज विल बी ऑन द गवर्नमेंट ओन। जितने भी आपके हेल्थ केयर सर्विसेज हैं रिगार्डिंग योर आईज, योर टीथ, वॉट एवर बॉडी पार्ट, सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। अगर आप नॉर्मली भी अपने किसी विजिट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइक माई ब्रदर इज स्टेइंग इन कैनेडा, ही हैज़ अ 3-year-old डॉटर, उसे टूथ-एक का प्रॉब्लम हो गया था। When he visited the doctor, उन्होंने कहा कि कुछ इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, दैट विल कॉस्ट अराउंड एक सिटिंग का वहाँ पर 5,000 रुपीज़ लगते हैं फॉर 1 sitting. So she was asked to come there for 6 times. So 5 into 6 is 30,000. And he has taken his PR from here. So वहाँ पर जो ये 30,000 का खर्चा था, ये सारा गवर्नमेंट ने दिया है। उन्हें अमेरिका का PR स्टेटस जो है मोबिलिटी टर्म्स में बहुत हाईली रिगार्ड किया जाता है, ठीक है। कैनेडा हैज़ बीन ऑन टॉप पोजिशन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप रात को वहाँ पर अकेले घूम सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज, ओवरऑल हैप्पीनेस एंड क्लाइमेट एज वेल, वहाँ पर आपको हर चीज़ की फैसिलिटी बहुत टॉप नॉच मिलती है। एवरीवेयर यू सी पीपल आर हैविंग स्माइलिंग फेसेस एंड पोलाइट नेचर। यहाँ पर नहीं है कि कुछ भी हुआ एंड स्टार्ट हो गया, आपको पता है मेरा बाप कौन है, वो वाला सिचुएशन नहीं है। वहाँ पर जाकर आप क्या हो वो देखते हैं, ठीक है। और आप ये चीज़ देखिए कि कनाडा में जब भी आप मतलब कनाडा का PR लेकर आप US जॉब करने जाएंगे, वहाँ पर आपका स्टार्टिंग वेजेस विल बी अराउंड $45 पर आवर स्टार्टिंग, ओके। सो दीज आर द बेनिफिट्स, ओके। इफ वी टॉक अबाउट द सैलरी कंपैरिजन, आप अब यहाँ से बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, आगे यू विल बी मूविंग ऑन। आप ऑब्वियसली ये सोचेंगे, अब जैसे अगर मैं आपके बीटेक के और PG के खर्चे की बात करूँ, ठीक है, आप आगे चल के अपनी डिग्री में जो भी आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, तो आपका जनरली क्या रहेगा, यू विल बी अर्निंग अप्रॉक्स 30 to 40K, मैक्स 50K, इससे ज़्यादा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं। यू आर जस्ट वॉट यू आर बेसिकली PG in engineering. You don't have any experience, you don't have any skill because you didn't got the time, you didn't got the opportunity. ओके, सो आप जब इस लेवल पर स्टार्ट करेंगे तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा दैट वुड बी अराउंड 30 to 40K पर मंथ। अब इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा, इंटू 12 या 3,60,000 अप्रोक्स, या साइलेंस प्लीज इन द बैक, थैंक यू। Yeah, approx you can say 3 to 4 lakhs per annum. Yeah, and if here by the fact I was telling you before, $18 to $22 per hour, ठीक है, आप ये चीज देखेंगे तो you will be earning approx 1.5 lakhs per month.
पर मंथ, तो 1.5 into 12. ओके, सो यू सी कि आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे एक्सपेंसेस आपके लिए निकालना बहुत इजी है। आप पीजी होने से पहले ही अपने पेरेंट्स को उनका सारा दिया हुआ पैसा वापस दे देंगे, ये लो, दैट टू विद इंटरेस्ट। या नेक्स्ट स्लाइड। एंड इन अब्रॉड देयर इज अ फैक्ट चेक कि 90% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर नॉट अंडर दैट प्राइवेट थिंग कि अपनी डिक्टेटरशिप चल रही है, जो वो रूल्स बना रहे हैं वही चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हमारी स्टूडेंट ने मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट, आपको पता होगा यूएस में, इट्स अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था एंड शी गॉट 90% स्कॉलरशिप। अभी रिसेंट का ही ये हमारा केस है। उन्होंने हमारे साथ आइल्स किया, आगे उन्होंने एडमिशन लिया, बेस्ड ऑन हर मार्क्स उन्हें मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला 90% स्कॉलरशिप के साथ। वहाँ पर करीबन 5 लाख रुपए है जो करने का है। आप ये सोचिए 90% में क्या है, बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि फ्री में ही चले गए वो वहाँ पर। या ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन फॉर द प्राइज, कम ऑन। What is the synonym of country other than nation? Do you understand what is synonym? Similar meaning, different words, right? Okay. Time is running, come on. No Google, please. Yeah? Please? No. Province, no. No. No, it's a country. I'm asking about a country. Nation सबको पता है. Time is running up, come on. No. Yeah. Republic, no. Yeah. Can I know your name? आप दोनों ने आंसर दिया था, मैं आधा आधा गिफ्ट नहीं दे सकती। अच्छा, वो गूगल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, राइट? श्योर? ओके, कैन यू प्लीज कम अप ओवर हियर? द आंसर इज टेरिटरी। कैन आई नो योर नेम? रिमझिम, नाइस नेम, कंग्रेचुलेशंस। स्मॉल। I was talking about the GATE exam. Do any of you know the full form of GATE? Graduate Aptitude Test in Engineering. Very good. Sir, can we give him a prize, please? For you. Yeah. Graduate Aptitude Test in English, right? Engineering. या जिन लोगों ने अपना सर हाँ या ना में नहीं हिलाया, दे आर जस्ट ब्लाइंडली लिसनिंग। या इंजीनियरिंग, राइट? ओके, अभी किसी को गिफ्ट मिला है यार, उसकी तो रिस्पेक्ट कर लो। या ओके, सो बेसिकली गेट एग्जाम के बारे में डू एनी ऑफ यू नो डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट इट? गेट एग्जाम बहुत फेमस है, ठीक है। बीटेक्स ऑब्वियसली दे नो, उनके तो भगवान हैं, ठीक है। तो बताइए क्या जानते हैं आप गेट एग्जाम के बारे में? या उससे IITs एंड IITs में एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IITs में एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनदर पॉइंट, PSU के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड। 3 years के लिए वो वैलिड रहता है। ओके, सो एनी ऑफ यू प्लानिंग टू गिव गेट? हु इज प्लानिंग टू गिव गेट? You were raising your hand, come on. Don't be afraid to be alone in the भीड़, okay? या भीड़ सुनाई दे गया कि मैम ने एक हिंदी वर्ड यूज कर लिया। खुद 2 लाइन इंग्लिश में बोल के दिखाओ। चलो आ जाओ, कम ऑन, ट्रांसलेट माय वर्ड्स, कम ऑन। या
calling the person behind you. Yeah. बच्चे आप पढ़ रहे हो, हम आपके जैसों को पढ़ा रहे हैं, फर्क है. ओके, नेवर फॉरगेट दैट. या यस, एट द बैक एनी कंफ्यूजन? या सो यू सी, इफ वी टॉक अबाउट द गेट एग्जाम, आप सबको पता है कि गेट एग्जाम क्या है, ठीक है? एज यू टोल्ड मी कि IITs, PSU सबके लिए हमें चाहिए गेट एग्जाम, ठीक है? बट आप ये चीज़ देखिए कि हर साल कम से कम 10 लाख स्टूडेंट्स गेट के एग्जाम के लिए बैठते हैं, ठीक है? एंड ओनली अप्रॉक्सीमेटली विच आर डेटा सेज कि 2 लाख स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, ठीक है? बट अगर हम बात करें IELTS की, विच इज़ बीइंग एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि आगे आपके PG लेवल के एडमिशन के लिए ये बेसिक चीज़ है. और गेट में जो एडमिशन है, जो गेट एग्ज़ाम है, ये आपको सिर्फ एडमिशन दिलाता है इंडिया में. बाहर के यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको गेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ज़रूरत है IELTS एग्ज़ाम देने की. IELTS एग्ज़ाम इट्स बेसिकली एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसके अंदर आपकी बेसिक स्किल्स, दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग को एनालाइज किया जाता है, ठीक है? एंड इसके लिए आपको थ्रू आउट, आपको पता है कि कई लोग अपने ईयर्स ड्रॉप करते हैं, लाइक फॉर ईयर एंड 2 दे टेक ब्रेक कि हम पहले गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, देन वी विल मूव ऑन. लेकिन IELTS के लिए ऐसा नहीं है. IELTS एक मंथ में करीबन 4 to 5 टाइम्स कंडक्ट किया जाता है, ठीक है? तो इसका कोई मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है, आप इसे कितनी बार भी दे सकते हैं जब तक आपके डिज़ायर्ड बैंड्स ना आए. हर यूनिवर्सिटी का एक अपना डिज़ायर्ड बैंड रहता है, अगर आपको वो मिल जाता है यू आर स्ट्रेट गोइंग टू गेट एडमिशन. इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है, ठीक है? देन वी टॉक अबाउट कि जहाँ पर आप IELTS क्लियर करेंगे, ये आपके लिए और भी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ खोल देगा अदर देन एडमिशन्स. आप बाहर जाएंगे, कहीं पर भी एज अ स्किल डेवलपर, कहीं पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपके IELTS क्लियर है तो आपको उसके लिए स्पेशल रिकग्निशन मिलती है. आज की डेट में जो भी सेलिब्रिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा, शी हैज़ बीन अ ग्लोबल आइकॉन, ओके? और आपने देखा है कि उनकी इंग्लिश जब से वो बाहर शिफ्ट हुई है कितनी ज़्यादा फैबुलस हो गई है, बिकॉज शी डिड IELTS. इसका बहुत बड़ा रीज़न है IELTS, ठीक है? एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, गेट जो है वो आपकी टेक्निकल नॉलेज को वो करेगा, एक्सेस करेगा कि आपको कितना टेक्निकली और जो आपने ये थ्योरेटिकल पढ़ा है इसके बारे में. बट IELTS में जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, लाइक आप जैसे स्कूल में एग्जाम देते थे, लाइक रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये उसी तरीके से है. ऑब्वियसली उतना लेवल नहीं है बट इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड. ओके, वन मोर क्वेश्चन, one more option of getting the prize. Is any of the faculty over here? Do you know this idiom? Do you know what is an idiom? What is an idiom? Muhavra. Very good. No gift for that, please. Sorry. Yeah. Yeah. Can you please be a bit louder? I'm not able to hear you. Yeah, very good. Can you please stand up and tell me your name? Akashvi. Kashvi. Okay. Big round of applause, please. Sir, can you pass on the gift, please? Yeah. So this is basically, आपने एक डायलॉग सुना होगा प्रियंका चोपड़ा का कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए. ये उल्टा है, ये वो नहीं है. ये है कि किसी को इतना डराओ, इतना डराओ, इतना तंग करो कि वो उसको भूल ही ना पाए, ठीक है? जैसे कि आपकी अगर फैकल्टी नहीं है तो इंजीनियरिंग, ओके? कि इतना डरा दो कि बुक्स भी रात को सपने में आए, ठीक है? आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू आपकी फैकल्टी ना हो यहाँ पर, ओके? ओके, किसी को इतना डराओ, इतना तंग करो कि वो उनके माइंड में घुसकर बैठ जाए. दिस इज वॉट वी यूज, समवन गेटिंग इन टू योर स्किन, एंड आई गेस दैट वॉट इंजीनियरिंग इज डूइंग टू यू, राइट? आई कैन सी ऑन योर फेस. या ओके सर, विल यू टेक अप? Okay, so if we talk about the different English proficiency tests, okay, there are basically 4 types of English proficiency test: IELTS, CELPIP, PTE and TOEFL. Okay, IELTS जो है वो सबसे पुराना आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है.
जो अराउंड 30 ईयर्स पुराना है। आइल्स एक ऐसा एग्ज़ाम है जो दुनिया में हर जगह वैलिड है। इफ़ वी टॉक अबाउट सेल्पिप एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अभी 4 to 5 ईयर्स पहले लॉन्च हुआ है, ठीक है, और वो सिर्फ कनाडा में वैलिड है। बट अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो इट्स वेरी मच ऑप्शनल, इट्स वेरी मच प्रेफरेबल कि आप सेल्पिप चुनें रैदर देन आइल्स। ओके, आप, क्योंकि सेल्पिप इज़ ईजियर देन आइल्स। सेल्पिप का जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चंस हैं, वो आइल्स से ईजी हैं, प्लस इसमें जितना आप स्कोर करेंगे उतना आप आइल्स में उतने एफर्ट में स्कोर नहीं कर पाएंगे। पीटी इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये भी एक बहुत फेमस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के कैंडिडेट्स देते हैं, बट ये और भी कई जगह पर अप्लाई होता है। एंड टोएफल इज़ मोस्टली गिवन इन फॉर द यूएस बेसिकली, जो टोएफल एग्ज़ाम दिया जाता है। बिकॉज वी हैव टू वाइंड अप एक्चुअली, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ। प्लस वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड सम लिस्ट, ठीक है, जिसमें कि हमने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस के कॉलेजेस को टारगेट किया है। आप चाहें तो हमसे वो लिस्ट ले सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर हमने जो लिस्ट प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसमें आप कॉलेजेस के नाम देख सकते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, प्लस कौन सा कॉलेज कितने बैंड्स रिक्वायर करता है सेल्पिप में, पीटीई में, आइल्स में, आप उसका भी एक आइडिया लगा सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द लिस्ट फ्रॉम अस। एंड लास्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ GRE, कम ऑन सर, कैन यू शो देम द ऑप्शंस? कैन आई नो योर नेम? कैन यू रिपीट द आंसर? Very good. Correct answer. Sir, the prize please. Yeah. The answer is graduate record examination. ये एग्जाम दिया जाता है GRE, GMAT. Yes, silence please. We are winding up. Please bear us for 1 minute also. Please. Yeah. We are also bearing you for the past 1 hour. Please. Yeah. So you see. यहाँ पर जो GRE, GMAT एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली दिया जाता है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि मैसेच्यूसेट्स जो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इन कनाडा। ये एग्ज़ाम्स बेसिकली वहाँ पर प्रेफर किए जाते हैं। बट इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, ये ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ को ही करें, क्योंकि बेनिफिट्स आपको सब जगह से मिलेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर आवर टाइम। थैंक यू सो मच। I hope you like the session. Yeah, any question I can help you with? Yeah. That depends on the what exactly the field you are looking for. STEM you are looking for, then you should definitely go for Canada. And US has been one of the difficult countries to go through because of some security issues and everything. Canada will be a good option and Australia for STEM. Yeah. ये दोनों कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इस टाइम पर जो STEM रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दैट, यू शुड ऑलवेज कंसिडर गोइंग टू कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया। या एनी अदर क्वेश्चन? एंड यू हैव आवर ब्रोशर्स एंड यू हैव आवर कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमें कभी भी, आवर कंसल्टेशन इज़ फ्री ऑफ चार्ज, आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद्युत हैज़ माई नंबर, यू कैन आस्क हिम एज वेल, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस, थैंक यू सो मच। अभी एक प्रिंसिपल सर के साथ बोले GMAT के लिए आपको क्या क्या करना होता है। ओके सर, GMAT she's asking. He's our GMAT teacher. Where is Vidyut? Vidyut. अब है? एक और दो। Yeah, you just call on that. We will. Actually, we have to meet the principal, sir. So थोड़ा सा, yeah. You